अगर आपको कोई आपके साथ गलत भी रहा है ना, तो वो भी आपको उसके लिए क्या करना है, आवाज उठानी। Greetings and good wishes to all. I am Secretary, District Legal Services Authority, Beed, State of Maharashtra. Beed is an agrarian society wherein mostly sugarcane growers and small scale industries are established. Thus, there is a huge possibility of mobility of unorganized sector here at Beed. The chances of child labor and adolescent labor as well as bonded labor are so high. Therefore, as per the scheme of NALSA of the year 2015 for an organized sector, we have established special cell consisting of panel advocate. We have Mr. Advocate Vikas Bade, who is dedicated towards the work of release of bonded labor. We have expert PLVs and social workers such as Advocate Shri Tatvashil Kamble, who is child welfare expert, and Child Welfare Committee's President Shri Ashok Tangre, as well as the social activist Shri Mithun Jogdan, who works day in and day out for the welfare of children. In the said special cell, we take active cooperation of the NGO International Justice Mission, who always helps us in all possible manner for the rescue of those bonded laborers. They sensitize the bonded labor as well as they take programs for sensitization of all stakeholders. So also it is worthwhile to mention that we coordinate with District Collector, the Superintendent of Police and all other welfare departments such as Education Officer, Child and Women Welfare Department, Labor Officer, etc. for the welfare of children. Recently, we have rescued blast victim Akash, and we have assured 3 lakh compensation for him. Recently, the compensation has been released at the auspicious hands of Honorable Principal District and Sessions Judge. So also recently, an incident of child labor had taken place at the rustic area of Tagargaon, wherein 10 to 12 children were employed by the villager for their homely works and other works such as massage and etc. So from there we have rescued them and we have rehabilitated them and reunited them. District Legal Services Authority Beed, इसके सौजन्य से हमने अभी फ़िलहाल में हमने एक ऑपरेशन किया है जहां पर 12 से 13 बच्चों को हमने रिलीज़ किया है। वो बच्चों को गांव के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक जिन्होंने उन्हें मसाज करने के लिए या और अदर काम करने के लिए उनको रखा था, उनको हमने रिलीज़ किया है, उनको रेस्क्यू किया है और जिन्होंने उनको वहाँ पे एंगेज किया था उनके खिलाफ में हमने FIR भी दाखिल की है। हमारे पैनल एडवोकेट विकास बड़े, इन्होंने उनके खिलाफ में FIR किए। इसी तरह से हमारे काउंसिलर श्री तत्वशील कामड़े और हमारे मिथुन जोगदंड और अशोक तांगड़े, इन्होंने वो बच्चों की काउंसिलिंग की और वो उन बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए DLSA बीड ने खुद की तरफ से उनको कुछ गिफ्ट्स दिए, जैसे कि कपड़े। रिसेंटली हमें जड़गांव DLSA सेक्रेटरी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बीड में माजलगांव तहसील में कुछ 34 लोग बॉन्डेड लेबर कर वहाँ पर इंगेज किए थे लोगों ने। वहाँ शुगर केन कटिंग के लिए उनको इंगेज किया गया था और उनकी हालत बहुत ही विकट थी, उनको खाना नहीं था, उनको सुकून नहीं था वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट PLV को वहाँ पर भिजाया था और उन लेबर्स का रात में 3 बजे रेस्क्यू हुआ, जिसमें हमें कलेक्टर सर का कोऑपरेशन मिला है और जिसमें हमें SP सर ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है। इसमें हमें FIR दाखिल करने में सफलता मिली है। हमने बहुत स्ट्रिंजेंट सेक्शंस उसमें लगाए ताकि आरोपी को उसमें बेल ना हो। और इसी तरह से हमने बीड जिले से 118 बच्चों को और बॉन्डेड लेबर को रिलीज किया है, जिनका रीइंटीग्रेशन और सोशल रिहैबिलिटेशन हो चुका है और वो आज अब सोसाइटी में, समाज में अच्छी तरह से वो काम काज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
आकाश जो लड़का हमने रिलीज किया था उसको कंपनसेशन दिया था 3 लाख रिसेंटली, उसका हमें फ़ोन आया, उसने हमें बताया है कि वो उसकी पढ़ाई चल रही है, कॉलेज लेवल में जा रहा है वो, और वो आगे चल के उसे वकील बनना है और कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। इस तरह से DLSA ऑफिस का इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कर स्पेशल सेल से हम काम करते हैं। और हमें अभी थोड़े आगे जाकर स्विफ्ट सेल्स बनाना है। तालुके के जितने सारे PLVs है उनमें से कुछ लोगों को हमने अपॉइंट करने वाले हैं। जैसे हम एक केस में मीडिएशन भी लिए है, वो मीडिएशन हमारा भले ही अनसक्सेसफुल हुआ, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर हम उन वकील को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे कि इसमें आप सेटलमेंट करके 25,000 रुपये का फाइन भरा है, अगर आप भर सकते हैं तो बच्चे का भला होगा। तो इस तरह से हम मीडिएशन का भी एक ऑप्शन एक रेडी रख रहे हैं। जिला विधि सेवा प्राधिकरण बीड़ की तरफ से लगभग नालसा के गाइडलाइन के अनुसार 2 साल पहले असंगठित कामगारों के लिए विशेष सेल का निर्माण किया। इस विशेष सेल में एक एडवोकेट, एक NGO, एक PLV और एक काउंसलर, इनके माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने लगभग 100 से ज्यादा अवेयरनेस कैंप आयोजित किए। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला और लगभग 118 जो बॉन्डेड लेबर थे उनको हम रेस्क्यू कर सके, उनको रोजगार दे सके, कुछ बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से फिर से वो मेन सिस्टम में आने की प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद जिला विधि सेवा प्राधिकरण जो असंगठित कामगारों के लिए काम करता है, उनका ये कहना है कि अगर कोई वेट बिगाड़ या बॉन्डेड लेबर कहीं पे फंसा हो तो भारत भर में के हर डिस्ट्रिक्ट में जिला विधि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विशेष सेल का निर्माण किया है। उनकी मदद से वो अपना खुद का पुनर्वसन कर सकते हैं और जिला विधि सेवा प्राधिकरण हर एक मजदूर के लिए, हर एक असंगठित कामगारों के लिए उनका हक दिलाने की कोशिश कर। जिले में कहीं भी बॉन्डेड लेबर्स है या कहीं बाल कामगार है जहाँ पे जबरदस्ती उन्हें काम करवाया जाता है, तो सरकार ने और गवर्नमेंट जो भी इसके बारे में पहल ली है वो बहुत ही सराहनीय है। हम पुलिस जिला विधि सेवा प्राधिकरण के साथ है। हमने अभी कुछ बच्चों की मुक्तता की थी इसमें और हमें अच्छा यश हासिल हुआ था। समाधान है कुछ बॉन्डेड लेबर्स को, बच्चों को हम छोड़ पाए थे और अभी उनके गांव को हम भेज दिए सभी बच्चों को भी विधि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से। और हमें ऐसे भी कभी कई अपराध की आपको भी किसी को पता चलता है, हम उसमें जरूर काम करेंगे और बच्चों की रिहाई करेंगे और ऐसा बॉन्डेड लेबर्स और बाल कामगार का शोषण कहीं होने नहीं देंगे।